Hi guys and welcome back. I hope you all are doing great. The topics that we are going to understand today are highest common factors and lowest common multiple. Now, what is a highest common factor and what is the lowest common multiple? इन टॉपिक्स में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन का, इंडेक्स नोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है. सो आई होप आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हैं, कवर्ड हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग के लिए आई टेक द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे इजी एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. आई ऑलवेज से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करें. फैक्टर, कॉमन, हाईएस्ट. फैक्टर है, कॉमन है, हाईएस्ट है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 10 एंड 20. A very basic example. Let's recall factors क्या होते हैं. 10 के फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जिनसे 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर्स जिनसे 10 को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास होल नंबर में आंसर आना चाहिए, राइट? वो नंबर्स 10 के फैक्टर्स हैं. और वो कौन कौन से नंबर्स हैं? सो वी कैन से 10 is completely divisible by 1, it is completely divisible by 2, it is completely divisible by 5, and it is completely divisible by itself, that is 10. Similarly, 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? 20 is completely divisible by 1, it is completely divisible by 2, it is completely divisible by 4, it is also completely divisible by 5, 10, and itself 20. These are the factors of 10 and these are the factors of 20. फैक्टर्स आ गए. अब इनमें से कॉमन सेलेक्ट कर लेते हैं. फैक्टर्स दैट आर कॉमन. कॉमन कौन कौन से हैं? 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, 5 इज कॉमन, दोनों में है, एंड 10 इज ऑल्सो कॉमन, दोनों में है. सो लेट्स राइट डाउन 1, 2, 5 एंड 10. These are the 4 common factors. Highest, इनमें highest कौन सा है? That is 10. So we can say highest common factor of 10 and 20 is 10 is the number that is highest, it is also common and it is a factor of 4. I hope HCF का highest common factor का basic आपको clear हो गया होगा. Now 10 and 20 ये तो बहुत ही बेसिक नंबर्स हैं, राइट? हमने उनके फैक्टर्स डायरेक्टली बोर्ड पे नोट डाउन कर लिए. व्हाट इफ वी आर गिवन नंबर्स इन 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स? इस तरह के नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सो वी हैव बेसिकली गॉट 2 मेथड्स. मेथड नंबर 1 इज कि मैं इंडिविजुअली उनको प्राइम फैक्टराइज करूं और फिर उसमें से फाइंड आउट कर लूं कि मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. वो कैसे होता है? Now let's take an example of 180 and 380. Let's say these are the two numbers. इनका highest common factor कौन सा है? So what I'm going to do is मैं 180 and 380 दोनों पे prime factorization apply करूंगा individually. 180, 380. As it is an even number, I am going to use 2. 2 9 times is 18 and 0 as it is. Again it is an even number. 2 4 times is 8 and 2 5 times is 10. Now 4 and 5 added together they make 9. 9 is divisible by 3. Divisibility test of 3 pass hoga, so I am going to use 3. 3 ones are 3. 1 remainder. 3 5 times is 15. Again 3 5 times is 15. And 5 1 times is 5. My prime factorization is complete. I am going to write factors of 180. 180 written as a product of its prime factors is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Right? Now this can be further written as index notation. We're going to study that as well. Let's apply it on 380. Prime factorization on 380. 2 1 times is 2. 2 9 times is 18 and 0 as it is. 2 9 times is 18. 2 5 times is 10.
9 plus 5 is 14, and 14 is not divisible by 3. So divisibility test of 3 to fail हो गया, but it has 5 in the end, which can be divided by 5. 5 1 times is 5, 4 remaining, 5 9 times is 45, and 19 1 times is 19, because 19 itself is a prime number. ये किसी और नंबर में नहीं आ सकता, 19 से ही आएगा. So 1 received, which means prime factorization is now complete. So I can write 380 written as a product of its prime factors is 2 into 2 into 5 into 19. Right? Now, अब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन एलिमेंट्स को सर्कल आउट कर लेना है. 2 इज कॉमन, another 2 is common, 3 इसमें तो है पर इनमें नहीं है, but this 5 is common. 19 इधर तो है बट उसमें नहीं है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा. So I can say highest common factor of 18, 180 and 380 is 2 multiplied with 2 multiplied with 5, which is 2 into 2 4 and 4 into 5 is 20. 20 वो नंबर है जो कि हाईएस्ट है, कॉमन है और फैक्टर है. राइट? आई होप दिस इज क्लियर. समटाइम्स क्या होता है, हमें फैक्टराइजेशन तो करके दी जाती है बट वो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख कर दिया जाता है. लेट्स से 180 in index notation as a product of its prime factors in index notation can be written as 2 square, 3 square and 5, and 380 in index notation can be written as 2 square into 5 into 90. इस तरह की सिचुएशन में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. टेक द कॉमन एलिमेंट्स ओनली. कॉमन एलिमेंट्स, इस केस में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2 कॉमन है, 3 इज नॉट कॉमन, 5 is common and 19 is not common. So we will take 2 and 5. So we say we are taking these two elements common. और इनमें पावर कौन सी लेनी है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल. याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पॉसिबल पावर जो है वो हमें चूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर देखें 2 और इधर भी 2, कॉमन एलिमेंट वी रोट इट 2. पावर स्मॉलेस्ट कौन सी? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, विच मीन्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 ही है, तो वी विल से 2. अगेन 3 इज नॉट कॉमन तो हमने लिया ही नहीं. 5 कॉमन 5, सो वी रोट 5. स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या है? इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, सो विल टेक 1 स्मॉलेस्ट पॉसिबल. राइट? लेट्स से अगर यहां पर 2 क्यूब होता तो आई वुड स्टिल टेक स्क्वायर, बिकॉज क्यूब बड़ी पावर है, इट्स अ हायर पावर. वी विल टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पावर, which is in this case 2, and in the case of 5 it is 1, and then we can convert it 2 into 2 into 5, and that makes 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20. So अगर आपको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स दिया गया है, उसमें कॉमन को सर्कल आउट कर लें और उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. बट इन केस आपको इंडेक्स नोटेशन में दिया गया है, सो व्हाट यू विल डू इज कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पावर ऑन कॉमन एलिमेंट्स की जो है वो यूज करते हुए हमने अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. आई होप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नाउ क्लियर. नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF इज यूजिंग लैडर मेथड, लेकिन इसमें हमें अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, बट दोनों नंबर्स को एक साथ प्राइम फैक्टराइज करना है. हाउ इज इट डन? I'll take both the numbers on the same ladder. जब तक ये किसी एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर से दोनों फैक्टराइज हो रहे हैं, हमें उनको करना है. और जब दोनों एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर से पॉसिबल ना हो, we will stop there. Let's see. Both are even numbers, we can use 2. 2 9 times is 18, 0 as it is.
एंड इसी को भी साइमल्टेनियसली करना है. To 1 times is 2, to 9 times is 18 and 0 as it is. Again, it is a even number and even number, so we'll use 2. To 4 times is 8 and to 5 times is 10. To 9 times is 18, one remainder, to 5 times is 10. 4 plus 5 is 9, which can be divided by 3. And 9 plus 5 is 14, which cannot be divided by 3. Right? In the divisibility test of 3, इस पे तो apply हो रहा है, but इस पे apply नहीं हो सकता, fail हो रहा है. So we will use the next possible prime number, and that is 5. 5, 5. दोनों के end में 5 है, which means divisibility test of 5 pass हो रहा है, so we can use 5 to divide. 5 9 times is 45. 5 ones are 5. 4 remainder, 5 9 is 45. Now we have a 9 and we have a 19. 9 and 19 दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एक प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. राइट, एज यू कैन सी 9 तो 3 से डिविजिबल है बट 19 नहीं है. सो एक कॉमन प्राइम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं है. सो वी स्टॉप देयर, हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे एंड वी विल से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 180 and 380 is 2 multiplied with 2 multiplied with 5, and that is 4. 4 5 is 20. This is the most convenient and the most easiest method. I hope अब आपको both methods are clear. Let's talk about LCM. Now what is an LCM? Again, reverse order में read करते हैं and it will be clear. Multiple है, common है and lowest है. Multiple which is common and is also lowest. Now the question is, what are multiples? Multiples होते क्या है? अगर हम 2 का टेबल रीड करना शुरू करें ना, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, और मैं इसको नोट करते जाऊं, 2 1 times is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. All these numbers are multiples of 2. ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, right? These are called multiples of 2. Similarly, अगर मैं 3 के multiples ले लूं, तो मैं 3 का टेबल रीड करना शुरू करता हूं. 3 1 is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, and so on. Right? These are all the multiples of 3. They are going to continue. ठीक है, and 2 के भी multiples continue होंगे. Right? अब multiples तो पता लग गए. Now let's take common multiples. इनमें जो common है उनको ले लेते हैं. We can see 6 is common. We can also see 12 is also common. And then we can see 18 is common. Right? Let's write down common कौन से हैं? 6 common है, 12 common है, 18 common है, and so on. इस तरह से और भी बहुत सारे common आएंगे. और इनमें से lowest कौन सा है? That is 6. So LCM 2 and 3 का lowest common multiple is 6. It is the lowest, it is also common, and it is a multiple. I hope basic of LCM is now clear. Now let's say we have got two numbers 54 and 240, and we are asked to find out the LCM of these two numbers. अब ये तो possible नहीं है कि हम 54 को टेबल रीड करना शुरू कर दें, उसके मल्टीपल्स नोट डाउन करना शुरू कर दें. सिमिलरली 240 के टेबल को रीड करके 240 के मल्टीपल्स नोट डाउन करें और वो नंबर फाइंड आउट करें जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है, कॉमन मल्टीपल है. ये तो पॉसिबल नहीं है. सो what we are going to do is we are going to use the same two methods, ladder method, prime factorization individually and prime factorizing them simultaneously on a same ladder. Let's try with the first method individually. 54 can be prime factorized and 240 as well. We have to prime factorize both of them. So 54 is an even number, so I'm going to use 2 to 2 times is 4 to 7 times is 14.
Now this cannot be divided by 2. I'm going to use 3 for it. 3 9 times is 27, 3 times is 9, and 3 1 times is 3. I've got 1, which means prime factorization is complete. I'm going to write down 54 as a product of its prime factors in index notation, directly in index notation. 2 into 3 raised to power 3, which is 3 cube. Now let's do it with 240. 2 1 times is 2, 2 times is 4, 0 taken as it is. Again it's an even number. 2 6 times is 12 and 0 taken as it is. 2 3 times is 6, 0 taken as it is. 2 1 times is 2 and 2 5 times is 10. 3 5 times is 15 and 5 1 times is 5. Now I'm going to write down 240 as a product of its prime factors in index notation directly, which is 2 raised to power 4 and 3 multiplied with 5. Now how are we going to find out LCM from here? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने कॉमन एलिमेंट्स लिए थे विद स्मॉलेस्ट पावर. एलसीएम के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉमन हो. कॉमन है वील यूज इट, नहीं है वी विल ऑल्सो यूज इट. एंड लोएस्ट पावर नहीं, दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक हाईएस्ट पावर पॉसिबल. नाउ 2 इज कॉमन, आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 एंड हाईएस्ट पावर कौन सी, इधर 1 है इधर 4 है, सो आई एम गोइंग टू टेक 4. एंड 3 इज कॉमन, so I'm going to write 3. Highest power क्या है, इधर 1 है and इधर 3 है, so I'm going to write 3 highest power. And 5 is not common but still I'm going to write 5. Highest power क्या है, 1, I'm going to use 1. Now we'll convert it. And we are going to find out इसकी value क्या है. 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, and 16 into 3 is 48, into 3 into 3 into 5, which is 2160. 54 and 240 के टेबल में 200,000, 2160 वो फर्स्ट मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है. इट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ आई होप इंडिविजुअली सॉल्व करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनको इंडेक्स नोटेशन में नोट डाउन करके हमें एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल यूज लेटर मेथड बट वी आर गोइंग टू यूज बोथ द टर्म्स simultaneously and let's see how it is done. Now we are going to use ladder method and we are going to perform prime factorization on both of them simultaneously. Let's see how it is done. 54 and 240. We'll use the smallest possible prime number for as long as both of them are completely divisible. Let's say 2 because they both are even numbers, so 2 can be used. 2 times is 4 and 2 7 times is 14 and 1 times is 2, 2 times is 4 and 0. Now you can see this is an odd number and this is an even number, so 2 cannot be directly used. Now we can use 3 because 7 plus 2 is 9 and 9 is completely divisible by 3, so 27 is also completely divisible by 3, and 1 plus 2 is 3 which is again divisible by 3, so 120 is also completely divisible by 3, so we are going to use 3. 3 9 times is 27, 3 4 times is 12 and 0. Now you can see again 9 and 40. 40 now this time cannot be solved by, cannot be factorized by 3, but 9 can be factorized by 3. In this scenario हमारे पास कोई ऐसा कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जो दोनों को completely डिवाइड कर सकता हो. What we are going to do is हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे and we are going to write 2 multiplied by 3 multiplied by 9 multiplied by 40. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ ये नंबर्स यूज कर रहे थे. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए इनके साथ साथ रिमेनिंग इन नंबर्स को भी यूज करना है. So what we are getting is 2 multiplied with 3 multiplied with 9 multiplied with 40 is
2160. This is once again a very easy method and most commonly used. Now यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊं. At times हमें यहां पर simply completely prime numbers में लिखना है, क्योंकि 40 is not a prime number, 9 again is not a prime number. तो हम इसको इंडिविजुअली को भी अगर एक भी हो रहा है किसी नंबर से, हम उसको फैक्टराइज करते रहेंगे. लेट्स से 9, so we can say 3 times is 9. 40 को मैं as it is लेके चलता हूँ. 3 1 times is 3. 40 को मैं as it is लेता हूँ. Now 40 can be used, can be factorized by 2. So I'm going to take 2, 20, 2 10 times, 2 5 times and 5. We can take it till here, जब तक हमारे पास दोनों में 1 नहीं आ जाता. बेशक हमें एक ही को एट अ टाइम प्राइम फैक्टराइज करना है. एंड वी कैन राइट दिस एंटायर टर्म हियर. 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiplied with 5. रीअरेंज करेंगे तो अगेन 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2, 3 into 3 into 3 and 5. और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 2160. लैडर मेथड में इट इज पॉसिबल कि आप यहीं पर रोक देते, इन दोनों के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते, और आप चाहें तो इंडिविजुअली को लेकर चलते रहें जब तक वो दोनों हमारे पास पॉसिबली 1 ना आ जाए. दोनों 1 आ गए, उसके बाद हमारी पूरी की पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट है. बट दिस इज नॉट अ सूटेबल मेथड. ये आप यूज कर सकते हैं. सजेस्टेड है कि आप यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए एंड सिंपली मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. Now I hope LCM is clear. Okay students, so now we have developed using basic examples our concept of highest common factor and lowest common multiple. और उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करके किस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड किस तरीके से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया जाता है. सिमिलरली ऑन अ सेम लेडर अगर हमारे पास 2 नंबर्स या 3 नंबर्स हैं, हम उनको किस तरह से प्राइम फैक्टराइज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं. अगर ये चीजें सारी की सारी क्लियर हैं तो नाउ लेट्स बिगिन सम एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि हमें यूजुअली हमारी बुक्स में देखने के लिए मिलते हैं, और ये एप्लीकेशंस भी हैं हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A teacher has 120 chocolates, 240 marshmallows and 480 candies. एक टीचर है, उनके पास 120 चॉकलेट्स हैं, 240 मार्शमेलोज हैं एंड 480 कैंडीज हैं. द प्लान इज टू मेक अ वेलकम गिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स. वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक वेलकम गिफ्ट बनाना चाहते हैं. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट पैक्स दैट कैन बी मेड. ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच पैक. अब वो कह रहे हैं कि जी हाइएस्ट पॉसिबल कितने पैकेट्स बन सकते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, कितने पैकेट्स को वो टीचर बना सकते हैं, और जितने वो पैकेट्स बनाएंगे उनमें इंडिविजुअली आइटम्स कितने होंगे. लेट्स से चॉकलेट्स हैं तो चॉकलेट्स कितने होंगे, मार्शमेलोज कितने होंगे, कैंडीज कितनी होंगी. अगर हम इसको गौर से देखें ना तो वील सी कि बेसिकली वो हमसे कह रहे हैं कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं. ये बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. नाउ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है. लेट्स से टीचर ने डिसाइड किया कि मैं एक ही गिफ्ट पैक बनाता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें 120 चॉकलेट्स डाल देंगे, 240 मार्शमेलोज डाल देंगे, 480 कैंडीज एक ही पैक में डाल देंगे. से इफ अ टीचर डिसाइड्स टू मेक 2 गिफ्ट पैक्स, तो वो क्या करेंगे, 60 चॉकलेट्स होंगे, उसमें 120 एंड 120 मार्शमेलोज होंगे एंड 240 कैंडीज होंगी. नाउ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम गिफ्ट पैक्स कितने बन सकते हैं जिसमें इंडिविजुअल सारे आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली. उसके लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूज करते हैं. लेट्स अप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑन ऑल दीज 3. 120 chocolates, 240 marshmallows and 480 candies. Chocolates, marshmallows and candies. Doing prime factorization हमें क्या पता लगेगा, let's see.
एज दे आर ऑल इवन नंबर्स मैं 2 को यूज कर सकता हूँ. To 6 times is 12, 0 taken as it is. To 1 times is 2, to 2 times is 4, 0 taken as it is. And to 2 times is 4, to 4 times is 8, 0 taken as it is. अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको मेरे साथ फॉलो करते जाओ एंड यू विल अंडरस्टैंड. अगर उसने 2 पैकेट्स बनाए, द टीचर मेड 2 पैकेट्स, तो सब पैकेट्स के अंदर कितने कितने आइटम्स होंगे वो हमें यहाँ पे पता लगता जाएगा. 60 चॉकलेट्स, 120 मार्शमेलोज एंड 240 कैंडीज. बट उसने हमसे पूछा हाईएस्ट ना, तो हम फर्दर प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको. अगेन दे आर ऑल इवन नंबर्स, आई एम गोइंग टू यूज 2. To 3 times is 6, 0 taken as it is. To 6 times is 12, 0 taken as it is. To 1 times is 2, to 2 times is 4, and 0 taken as it is. And now you can see 2 into 2 is 4. अगर उन टीचर ने 4 पैकेट्स बनाए, तो each packet will consist of 30 chocolates, 60 marshmallows and 120 candies. हमेशा ये हमें नंबर ऑफ पैकेट्स बताएगा साइड, और ये साइड बताएगा कि इंडिविजुअल पैकेट में कितने आइटम्स हैं, जो कि उसने हमसे पूछा. फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच पैक. जितने पैकेट्स हैं उनमें कितने आइटम्स हैं, कितने चॉकलेट्स हैं, कितने मार्शमेलोज हैं एंड कितनी कैंडीज हैं, हमें यहाँ पता लगता जाएगा. लेट्स डू इट फर्दर फैक्टराइज करते हैं. अगेन दे आर ऑल इवन नंबर्स, सो 2 15 टाइम्स इज 30, to 3 times is 6, 0 taken as it is. To 6 times is 12, 0 taken as it is. Now, in case 2 into 2 4 and 4 into 2 8 पैकेट्स टीचर बनाते हैं, गिफ्ट पैक्स बनाए, तो उनके हर पैकेट में 15 चॉकलेट्स होंगे, 30 मार्शमेलोज होंगे एंड 60 कैंडीज होंगे. अगेन ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज उन्होंने कहा हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है. सो वील कीप ऑन फैक्टराइजिंग इट. नाउ दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड यूजिंग नंबर 2 बिकॉज 15 इज एन ऑड नंबर. ये दो तो हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि जब तक सारे ना पॉसिबल हो, एक नंबर से फैक्टराइज ना हो सकते हो, डिवाइड ना हो सकते हो, तब तक हम उसको उस पर्टिकुलर नंबर से नहीं करेंगे. लेट्स से यहाँ पे तीनों के तीनों 3 से हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 तीनों पे अप्लाई हो सकता है. सो वील यूज 3. नाउ वील नॉट यूज 2. 3 5 times is 15, 3 10 is 30 and 3 20 is. Now as you can see, अब इस पे 3 भी अप्लाई नहीं हो सकता तीनों पे, लेकिन एट अ टाइम 5 यूज किया जा सकता है. 5 नंबर यूज किया जाएगा. 5 1 times is 5, 5 2 times is 10 and 5 4 times is 20. Now we have 1 2 and 4, right? Further इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज 2 and 4 ये तो 2 से हो सकते हैं, बट 1 तो नहीं हो सकता ना, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे. एंड दिस इज आवर आंसर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 3 multiplied with 5. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 8 16 24, and 24 into 5 is 120. 120 पैकेट्स एट मैक्स बन सकते हैं इन नंबर्स को यूज करके. 120 चॉकलेट्स एंड 240 मार्शमेलोज एंड 480 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट 120 में इक्वली किया जा सकता है. दिस इज द हाईएस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी, राइट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड ईच पैकेट विल कंसिस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, 2 मार्शमेलोज एंड 4 कैंडीज. जैसे जैसे आप लैडर में नीचे आते जाएंगे, यू विल सी द नंबर ऑफ पैकेट्स एंड उसमें कितनी क्वांटिटी होगी वो ये आपको पता चलता जाएगा यहाँ पर. When you have completely done your prime factorization, क्या इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज द फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 120. एंड ईच एलिमेंट also find out the number of items in each pack. Each pack will consist how many of each element? 1 chocolate, 2 marshmallows and 4 candies. This is your part B. Now this is the example of highest common factor. I hope it is clear. So students, now the question says 2 athletes are running on a same track. एक ही track पे there are 2 athletes that are running. Athlete A completes a lap in 30 seconds. Athlete A को टाइम लग रहा है 30 seconds का from starting point to again getting back to starting point. इसमें उसको 30 seconds का टाइम लगता है.
एंड एथलीट बी कंप्लीट्स द सेम लैप इन 45 सेकेंड्स, और एथलीट बी को स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में 45 सेकेंड्स का टाइम लगता है. नाउ द क्वेश्चन सेज कि जी वो कौन सा इंस्टेंस होगा, स्टार्टिंग लाइन पे तो वो इनिशियली थे, राइट? अब वो कौन सा इंस्टेंस है जब वो दोबारा दोनों एट अ टाइम स्टार्टिंग लाइन पर होंगे. हमें वो बेसिकली टाइम बताना है. तो हमारा माइंड बड़ा क्लियरली हमें ये बात सजेस्ट करेगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जब वो दोबारा स्टार्टिंग लाइन पे आ जाएंगे और एट अ टाइम स्टार्टिंग लाइन पर होंगे. बट हमसे पूछा जा रहा है कि जी फर्स्ट इंस्टेंस, वो फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा होगा आफ्टर स्टार्टिंग. व्हाट वी विल डू इज हम इसका एलसीएम लेंगे. नाउ लेट्स से एथलीट ए 30 सेकेंड्स के बाद दोबारा स्टार्टिंग पे है, 60 सेकेंड्स दोबारा स्टार्टिंग पर है, 90 सेकेंड्स दोबारा स्टार्टिंग पर है, 20 सेकेंड्स दोबारा स्टार्टिंग पर है, राइट? अगर आप इसको देखो तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, बोलोगे सर आप तो टेबल रीड कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली एलसीएम में ही तो हम ये काम करते हैं. सिमिलरली एथलीट बी जो 45 सेकेंड्स, देन 90 सेकेंड्स एंड सो ऑन, वो स्टार्टिंग लाइन पे होंगे. नाउ लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम, और एलसीएम हमें बता देगा कि वो फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा है जहां पर दोनों एथलीट्स एट अ टाइम स्टार्टिंग लाइन पर प्रेजेंट होंगे. नाउ as this is an odd number so मैं 2 को तो यूज नहीं कर सकता, but they both can be divided by 3. 3 10 times is 30 and 3 1 times is 3, 3 5 times is 15. Now this cannot be divided by, both of them cannot be divided by 3, so I'm going to use 5. 5 2 times is 10 and 5 3 times is 15. Further किसी इंडिविजुअल नंबर से, किसी एक प्राइम नंबर से ये दोनों फैक्टराइज नहीं हो सकते. सो द आंसर इज that is 3 5 times is 15, 15 2 times is 30 and 33 times is 90. 90 सेकेंड्स वो फर्स्ट इंस्टेंस है स्टार्टिंग के बाद जब बोथ एथलीट्स ए एंड बी विल बी ऑन द स्टार्टिंग लाइन एट द सेम टाइम, एंड दैट इज 90 सेकेंड्स पे. नाउ 90 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया जी 180 will be the second instance and so on. So this is the application of LCM. I hope it is clear. Okay students, so the next possible question that you can see in your books is when you have been given two numbers and you are asked to find out the highest common factor and lowest common multiple of them. And दोनों के लिए प्रोसेस तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है. सो हमने देखना ये है कि क्वेश्चन क्या है. 1620 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज 2 square into 3 raised to power 4 into 5, and other number is 1500 written as a product of its prime factors is 2 square into 3 into 5 cube. Find the highest common factor and lowest common multiple. ना उसने हमारे लिए ना इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन खुद कर ली है. वी वुड यूज 1620 एंड 1500 को हम एक ही लैडर पे प्लेस करके एक ही उसमें प्राइम फैक्टराइज कर देते, बट उसने हमारे लिए खुद प्राइम फैक्टराइजेशन इंडिविजुअली कर दी है दोनों नंबर्स की. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट इज द एलसीएम. हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, जो हमें फैक्टराइजेशन दी गई है, वो दी गई है इन इंडेक्स नोटेशन. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट write the numbers as their product of its prime factors. Let's say 1620 can be written as a product of its prime factors as 2 square into 3 raised to power 4 into 5, and 1500 can be written as a product of its prime factors as 2 square into 3 into 5 cube. First thing, what is their highest common factor? अब यहां पर ये बात याद रखेंगे, फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वी टेक ओनली कॉमन एलिमेंट्स. जो कॉमन है वो ही यूज करने हैं, वही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और पावर स्मॉलेस्ट पॉसिबल. फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 इज कॉमन, 3 इज कॉमन एंड 5 इज कॉमन. 2 कॉमन है एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पावर इज, दोनों की ही 2 है, स्क्वायर. Another common is
3. Smallest possible power, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, so we'll take 1. 5 is also common. Smallest possible power is 1. यहाँ 3 है, so we'll take 1. Right? Now, for LCM, similarly, हमने क्या करना है, whether they are common or not इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो दोनों में से किसी एक का भी फैक्टर है तो we will write it. Let's say 2 is common, तो 2 तो हम लिखेंगे ही. पावर हाईएस्ट पॉसिबल, दोनों की 2 है तो 2 ही हाईएस्ट पॉसिबल है. 3 is again common. Power highest possible 4 and 5 also common. Highest possible power is 3. This is the HCF, this is the LCM. HCF में common elements and lowest power. LCM में highest power चाहे common हो element या नहीं हो, we will use it, but highest possible power. Right? Now, we can solve this simply. 2 into 2 into 3 into 5, and that is 60. 60 is the highest common factor of, say, 1620 and 1500. And what is the LCM? 2 into 2 as their square, 3 into 3 into 3 into 3, 4 times 3 I am writing, and 3 times 5 I am going to write. 5 into 5 into 5, and that is 40500. 1620 and 1500 के टेबल में ये वो वाहिद फर्स्ट इंस्टेंस है. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे दोनों का नंबर 40,500 आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द LCM ऑफ 1620 and 1500. I hope it is clear. Now let's practice the last possible question that we can see in our books. 760 written as a product of its prime factors is 2 cube into 5 into 90, and 850 written as a product of its prime factors is 2 into 5 square into 17. Find the largest possible number that can completely divide both. Completely divide कौन कर सकता है? जो फैक्टर होता है, राइट? और कौन सा फाइंड आउट करना है? लार्जेस्ट, विच मीन्स हाइएस्ट. तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 760 and 850. Now, again, for HCF, only take common elements with their smallest possible power. 2 is common, so I am going to write 2. Smallest power क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, so we are going to use 1. 5 is also common. Smallest possible power is 1. 19 इधर तो है बट इसमें नहीं है. 17 इसमें तो है बट 760 में नहीं है. So therefore we are not going to use 19 and 17 because highest common factor के लिए it is necessary that there should be common element, common होना चाहिए in both of them. So 2 5 times is 10. 10 is the highest, largest possible number that will divide 760 and 850 both. Now similarly, to find out the LCM, common है या नहीं है doesn't matter. अगर यहाँ पर present है तो we will use it. 2 is common, and कौन सी power? Highest possible power. 1 3 3 is highest, तो हमने 3. 5 again it is common, highest possible power is 2. 19 is there and 17 is there, लेकिन common नहीं है, but still we are going to use them. 19 into 17. Lowest common multiple के लिए it is not necessary कि वो common हो. अगर वो as a factor दोनों में से किसी एक में भी है तो we are going to use it. And highest possible power. Now 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 19 into 17. Now this gives us 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 19 into 17. 6 4
600. This is the number which is the lowest common multiple of 760 and 850, which means कि 760 and 850 का जब हम टेबल रीड करते हैं, this is the first number, lowest number possible, जहाँ पे दोनों का आंसर 64600 होता है. I hope prime numbers, lowest common multiple and highest common factors is now clear. So this was the entire concept of highest common factor and lowest common multiple. I hope you were able to do it. I hope कि clear है. In the next video we will meet with another topic. Till then, take care.